नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं इश्क ने गालिब निकम्मा बना दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा बना दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। आइए गालिब के इसी शेर के साथ हम सीधे सीधे खबरों से आपको जोड़ते हैं। हमारे पास खबर आ रही है, मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर आज यह जानकारी दी। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि वह कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इसीलिए उनके संपर्क में जो लोग आ चुके हैं वह अपना टेस्ट ज़रूर करा लें। उन्होंने इसकी जानकारी दी ट्वीट के जरिए। और आपको बता दूं कि अश्विनी कुमार चौबे बिहार में बक्सर के सांसद हैं और मोदी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपको बता दूं कि मोदी सरकार में अब तक आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री कोविड-19 पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें अमित शाह और प्रहलाद जोशी जैसे मंत्री शामिल हैं। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के रानीगंज से हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। रानीगंज में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। विभिन्न मांगों को लेकर इन्होंने मांग की है कि जिन विकास के कार्य अधूरे छूटे पड़े हैं उन विकास के कार्यों को पूरा किया जाए। सड़कों की मरम्मत का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि बदहाल सड़क की वजह से रानीगंज वासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी कई तरह की मांगें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से की गई और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के माध्यम से। और ये गुजारिश की गई जिलाधिकारी से कि विकास के कार्य पूरे किए जाएं जल्द से जल्द। और इसकी अगुवाई कर रहे थे रुनु दत्ता, जो विधायक भी हैं रानीगंज के और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। रुनु दत्ता की अगुवाई में यह आंदोलन यहाँ चलाया गया और ज्ञापन सौंपा गया जिलाधिकारी को। তাতে মূলত নাগরিক পরিষেবা থেকে এসসি এসটি সার্টিফিকেট, যে গরিব মানুষদের ঘর, রেশন, ডিজিটাল রেশন কার্ড, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, এই ধরনের যে আছে সাফাই, এই ধরনের বিষয়গুলোকে যা কর্পোরেশন ভেঙে যাওয়ার পর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসলো এবং আমরা অবাক হয়ে দেখলাম তিনি রিজাইন করলেন, তিনি দল থেকে রিজাইন করলেন। এখন কে আছে মালিক? কে মালিক? কে চালাচ্ছে? আমরা অবিলম্বে পৌর নির্বাচন চাই, যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দিয়ে নয়। পৌর নির্বাচন কেন করছে না? কিসের ভয় পৌর নির্বাচন করার জন্য? আমরা বলছি অবিলম্বে পৌর নির্বাচন কর। মানুষের কাছে যাও, মানুষ কি রায় দেবে? বিধানসভার জন্য তাকাবার কিছু নেই। বিধানসভা নির্দিষ্ট সময় হবে, পৌরসভা কেন হলো না? আমরা অবিলম্বে দাবি করছি পৌরসভাকে নির্বাচিত করতে হবে এবং পৌর যে বিষয়গুলো আমরা 10টা বিষয় রেখেছি সেগুলো অবিলম্বে মীমাংসা করতে হবে এবং এগুলো সমস্যার সমাধান করে স্পিড আপ করতে হবে পৌরসভাকে। এই করব এটা হয়। আমরা আরও দুটো তিনটে দাবি রেখেছি। সেটা হচ্ছে যে আমরা থানায় যেটা জন্য এসেছিলাম সেটা হচ্ছে বাইপাস। এটা একটা প্রধান সমস্যা। এই যে আজকে একটা রাস্তা খারাপ হয়ে গেছে, 6 মাস ধরে চলছে। কোনো এই ধরনের একটা মেন রাস্তা এনএইচের ওপর এইভাবে হয় নাকি? একটা কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে দিলাম, তার অভিজ্ঞতা নেই, কিচ্ছু নেই, রড বাজছে 6 মাস পেরিয়ে গেল, 8 মাস পেরিয়ে গেল, এখনও কতদিন যাবে কেউ জানে না। কেন সেরকম এক্সপার্টকে দিয়ে এই রাস্তা রাতারাতি করানো হলো না? একটাই তো রাস্তা এনএইচে, আর রানীগঞ্জে বিকল্প রাস্তা নেই। এইগুলোকে আমরা দাবি রেখেছি। এবং এনএইচ ন্যাশনাল হাইওয়ে বাইপাস, এটা মঙ্গলপুর থেকে আমরা তখন দেখেছিলাম এডিডিএ মারফত যে ওখান দিয়ে করার সম্ভাবনা আছে। আমি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, বলেছিলাম, বারবার গেছিলাম, কিন্তু মন্ত্রী কতটা বুঝেছে আমি জানি না। কেন এরা লুট ছাড়া তো কিছু বোঝে না। এরা একমাত্র লুটটা জানে, কয়লা, লোহা, বালি, জমি এইসবগুলো ভালো বোঝে, কাজটা ভালো বোঝে না। ফলে কতটা কি জেলা হয়ে গেল এতদিন। রানীগঞ্জ পুরনো একটা মহকুমা। স্বাভাবিক জামুরিয়া রানীগঞ্জকে নিয়ে যদি মহকুমা করা হয় তাহলে এই মানুষের 18 কিলোমিটার যেতে হবে না কোর্টে, এসডি অফিসে, ডিএম অফিসে যেতে হবে না, এখানেই সে পরিষেবা পাবে। মানুষ তো চাইবে যে যত ঘরের কাছে, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যত ছোট প্রশাসন করে বড় প্রশাসন না, মানুষের কাছে সরকারকে নিয়ে আসা। আমি আশা করব যে এইগুলো নিঃসন্দেহে তারা ভাববে। যদি করা হয় ভালো, আমরা তো ডিমান্ড করছি, তো করছেন না কেন? কারুর তো কোনো ক্ষমতা নেই। আমরা জানি এই সরকারের মেয়রই হোক, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হোক, যেই হোক, কোনো পাওয়ার কারণ নেই। একটাই আলো, সে তো দিদি যদি বলে তাহলে হবে। তা আমরা দিদির কাছে, দিদির সামনেই যে বিধানসভায় তুলেছি। দিদি জানে, দিদি বিষয়টা করতে পারবে না যে জানি না।
बिहार से मॉब लिंचिंग की एक घटना हमारे सामने आ रही है। मॉब लिंचिंग की एक घटना को अंजाम दिया है यहाँ के लोगों ने। आपको बता दूं कि सीतामढ़ी जिले से हमारे पास खबर आ रही है। सीतामढ़ी जिले में 2 युवकों पर यह आरोप था कि वह लोगों को हड़का रहे थे पिस्तौल दिखाकर। इससे पहले भी वह रंगदारी वसूला करते थे, लेकिन लोगों के सब्र का बांध टूट पड़ा और जब रंगदारी करने लगे वह और पिस्तौल दिखाकर लोगों को हड़काने लगे तो स्थानीय लोग काफी गुस्से में आ गए और नाराजगी के बाद लोगों ने पीट पीट कर दोनों की हत्या कर दी। दोनों सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे और दोनों युवक थे और दोनों लोगों को हड़का रहे थे। आखिरकार स्थानीय लोग काफी नाराज हो गए और नाराजगी के आलम में पीट पीट कर दोनों की हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के आते आते दोनों की स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। अस्पताल ले जाने के क्रम में ही दोनों की मौत हो गई। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। पानी अपने कई रंग दिखाता रहता है। एक रंग और देखने को मिला हमारे पास। कुल्टी से खबर आ रही है। कुल्टी में पानी की कमी को देखते हुए यहाँ के लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और 1 घंटे तक पथ अवरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया और पानी की मांग की गई। इनका कहना है कि पानी की कमी की वजह से इन्हें काफ़ी दुश्वारियां उठानी पड़ रही हैं। आपको बता दूं कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 72 नंबर वार्ड में पानी की भीषण समस्या है और इसे लेकर यहां के लोगों ने सड़क मार्ग अवरुद्ध कर दिया और मांग की प्रशासन से, आसनसोल नगर निगम से कि पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। हालांकि एक तरफ दावे किए जाते हैं आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कि अब पानी की कोई समस्या नहीं रही, लेकिन अभी भी कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। কি কারণে আজকে আপনারা রোড ব্লক করেছেন? আজকে আমাদের 72 নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ সরণিতে জল আসছে না। অনেক জায়গায় জল চালু হয়ে গেছে, আমাদের পাইপও এখনো পড়েনি। বলছে পাইপ নেই, পাইপ শেষ হয়ে গেছে। তাই আমাদের একদম কুয়ো শুকিয়ে গেছে, একদম জলের খুবই এই বছর অসুবিধা হচ্ছে। তাই আমাদের আজকে যাতে আমাদের তাড়াতাড়ি হয়ে যায় সেই জন্য আমরা দাবি করেছি। কদিন ধরে জল নেই? জল তো নেই, জল নেই, একদম নেই। খাবার জল কিচ্ছু নেই, খাবার জলের কোনো ব্যবস্থা নেই আমাদের। কষ্ট করে প্রায় 3 বছর ধরে আমাদের জল নেই। দূর দূরান্তে আমাদের জল আনতে হয়, একদমই জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। আর চারিদিকে যখন হচ্ছে আমাদের কেন বন্ধ থাকবে? আমাদের কেন হচ্ছে না? আমরা সব টাকা দিয়েছি, সব কিছু করেছি। এটা আজকে আমরা চাই যে আমাদের লিখিত দেওয়া হোক, যাতে আমরা আমাদের তাড়াতাড়ি এটা কাজটা হয়। কোন কোন জায়গায় জল নেই? সব 72 নম্বর রামকৃষ্ণ সরণি, কলেজ মোড়, কলেজ রোড, সব চারিদিকে জল। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম শ্রাবণী ব্যানার্জি। बात करेंगे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को चंद महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से उठापटक शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। विभिन्न दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहां इस बार मुख्य मुकाबला भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। यही वजह है कि लोग इन दोनों दलों की तरफ से देख रहे हैं और ये कयास लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर किस दल को फायदा मिलेगा यहां और किसकी सरकार बनेगी। दोनों दलों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये बात भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस बार फायदा मिल सकता है भाजपा को, ओवैसी का फायदा मिल सकता है। ओवैसी अगर यहां प्रचार करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी अपने दल को लेकर यहां प्रचार करते हैं और अपने प्रत्याशियों को यहां उतारते हैं, तो इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। माइनॉरिटी वोट बटेंगे और इसका फायदा भाजपा को पहुंचेगा। और दूसरा फायदा वाम दल और कांग्रेस की तरफ से भी मिल सकता है, क्योंकि इस बार वाम दल, वाम फ्रंट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं दोनों दल, और इसे लेकर भी इसे फायदे के रूप में देखा जा रहा है। और लोगों का यह कहना है कि इनका फायदा मिलेगा भाजपा को और भाजपा हो सकता है अपनी सरकार बना ले। और ये दावे भी किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से कि 200 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है। आइए लिए चलते हैं आपको रानीगंज में मंदिर में चोरी की घटनाएं लगातार आ रही हैं। हमने आपको दिखाया था कि यहां लगातार मंदिरों में चोरी की घटनाएं हो रही हैं और आज फिर हमारे पास एक खबर आई है कि रानीगंज के कीर्तनी पाड़ा में शिव मंदिर है, शिव मंदिर से चोरी की घटना हुई। चोरी की घटना की खबर हमारे पास आ रही है। चोरों ने इस मंदिर को निशाना बनाते हुए मंदिर की तमाम चीजें उड़ा ली, यहां तक कि यहाँ जो बर्तन है, मंदिर के बर्तन, आभूषण और बाल्टी तक नहीं छोड़ी।
तोड़े चोरों ने और मंदिर को पूरी तरह से खाली कर दिया। आखिर कौन है जो इस तरह से निशाना बना रहा है मंदिरों को? अपराधियों का ऐसा कौन सा गैंग है जो निशाना बना रहा है इन मंदिरों को? इस पर बहस की जरूरत है और इस पर गंभीर कार्रवाई की जरूरत है। बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर में चोरी के बाद काफी लोगों में अफसोस भी है, काफी नाराजगी भी है, तो और लोग ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर कौन इस तरह की हरकत कर रहा है। पुलिस तफ्तीश में लगी है। রাত্রে চুরি হয়েছে, পরে ভোরে আমরা এসে ছেলেরা যারা উঠে ভোরে মর্নিং ওয়াক করতে তারা দেখছে মন্দির প্রণাম করার সময় যে তালার পেছনে তালাটা মন্দিরে ভাঙা আছে। ভাঙা পরে আমাকে খবর দিল এরকম ব্যাপার। আমরা এসে দেখছি পুরো মানে যা দানপেটি ছিল 8-9 মাস দানপেটি পুরো খালি করে দিয়েছে। পিতলের জিনিসপত্র ছিল, সাপ ছিল আমাদের, ওইটা নিয়ে গেছে। থালা ছিল, থালা পর্যন্ত ছাড় নেই, বাটি থালা যা পিতলে যা জিনিসপত্র ছিল সব নিয়ে যায়। অথচ আমাদের একটা বালতি ছিল মন্দির ধোয়া, সেই বালতিটাও নিয়ে গেছে। মানে শিবের মাথায় যে সাপ থাকে সাপ নিয়ে সেটাও গেছে। নিয়ে গেছে। আর আমাদের পিতলে থালা আছে যে মায়ের প্রসাদের জন্য রাখানো হয় এখানে জিনিসপত্র, সেগুলো সব তুলে নিয়ে গেছে। এই দানপেটি 8 থেকে 9 মাস হয়ে গেল আমাদের, আমরা খোলেনি। আমরা বলবো এইবার শ্রাবণ মাসে খুলবো, মোটামুটি না হলেও 15-20 মতো ছিল ওতে। না আমরা ভাবছি আজকে একটু পরে আমার লেটার লিখে আমরা যাবো থানাতে, যাবো অভিযোগ। আমার নাম হচ্ছে বামপদ মালাকার, আমি যে পাড়ার এই মন্দিরের সেক্রেটারি। আমাদের পাড়ার প্রতিবেশী মিলিয়ে মন্দির করেছিলাম। আর এই মন্দির নাম হচ্ছে মা অন্নপূর্ণা শিব মন্দির, এটা কীর্তনীয় পাড়া। कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है। कुल्टी में कांग्रेस की तरफ से स्थापना दिवस के मौके पर रैली निकाली गई और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को यहां पे रेखांकित किया गया और उसके खिलाफ नारे लगाए गए। और इस मौके पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता यहां मौजूद थे और इन नेताओं की मौजूदगी में, इनकी उपस्थिति में, इनकी देखरेख में यहां रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे, इसमें शामिल हुए। आज कांग्रेसेर 136তম প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমরা কুলটির যারা কংগ্রেস কর্মী আমরা ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং করলাম প্রথমে পার্টি অফিসে ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং করার পর আমরা এখানে এসে মোদিজির পুষ্পস্তলিকা দাহ করলাম। কারণটা হচ্ছে যে আজ ভারতবর্ষের যে অবস্থা, কংগ্রেস যে চিন্তা করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছিল, মোদী সরকার আসার পর থেকে তার আর কিছুই রইল না, সব শেষ করে দিচ্ছে। ভারতবর্ষে যে সমস্ত জিনিস কংগ্রেস করেছিল দেখা যাচ্ছে একটার পর একটা মোদী সরকার বিক্রি করে দিচ্ছে আর মানুষকে বোঝাচ্ছে যে আমরা 70 বছর ধরে নাকি কংগ্রেস কোনো কিছুই করেনি। অথচ মোদির একটু লজ্জাও লাগছে না, যে সে বুঝতে পারছে না যে যেগুলো বিক্রি করছে সেগুলো কার করা, কে করেছে। আজকে মানুষের কি চরম অবস্থা, ভারতবর্ষে কি অবস্থা সাধারণ মানুষের, যারা চাকরি করে চাকরি তাদের চলে গেছে, মানুষের চাকরি নেই। এদিকে চারিদিকে হাহাকার মচে গেছে। 45 বছরে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ বেকারত্ব আজকে। সেই পরিস্থিতিতে আমরা এখানে কংগ্রেসের যেরকম 136তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করলাম, সেরকম সাথে সাথে আমরা মোদী সরকারের পুষ্পস্তলিকা দাহ করে মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছি যে আর এই সরকার আমাদের জন্য নয়। একদিকে মোদী সরকার, একদিকে দিদির সরকার অতিষ্ঠ করে দিয়েছে বাংলার মানুষকে। তাই আমরা তার প্রতিবাদ করার জন্য এইখানে এসে জমায়েত হয়েছি। আপনার নাম আর পরিচয়? আপনার নামটার পরিচয়? আর চন্ডী চ্যাটার্জি, पीसीसी मेंबर वेस्ट बंगाल। बंगाल के जामुड़िया में भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक रैली निकाली गई। कह सकते हैं इसे शक्ति प्रदर्शन, और शक्ति प्रदर्शन करके टीएमसी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जामुड़िया और आसपास के अंचल में तृणमूल कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। और इन दृश्यों में आप देखिए कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में इस रैली में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लोग शामिल हुए और इसकी अगुवाई कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिजीत घटक। उनकी अगुवाई में यहाँ रैली निकाली गई और रैली ने विभिन्न एरिया का भ्रमण किया, विभिन्न एरिया की परिक्रमा की गई और इसके बाद रैली को समाप्त किया गया। और इसकी अगुवाई कर रहे अभिजीत घटक ने हमारे संवाददाता को बताया कि इस बार तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और जामुड़िया विधानसभा में भी तृणमूल का प्रत्याशी ही जीतेगा, इस तरह का दावा किया गया अभिजीत घटक की तरफ से। उनके साथ यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष साधन राय भी मौजूद थे। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে যে বঙ্গজনী যাত্রা আমরা জামুড়িয়াতে 12 তারিখ থেকে শুরু করেছিলাম, সেই বঙ্গজনী যাত্রার
আজকে আমরা মিছিল করলাম। এই মিছিলে হাজার হাজার মানুষ আজকে আমাদের সাথে পায়ে পা মেলালেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ধ্বনি আজকে জামুরিয়ার গ্রামে গঞ্জে আমরা পৌঁছে দিয়েছি। আমাদের দুই ব্লক সভাপতি সাধন রায় এবং সুকুমার ভট্টাচার্য তাদের এবং আমাদের জেলার সভাধিপতি আছেন মাননীয় সুভদ্রা বাউরি, তার সাথে সাথে যুব সভাপতি মৃদুল আছে, ছাত্র সভাপতি আছেন, এক্স কাউন্সিলররা রয়েছেন, পঞ্চায়েতের নানান পদে যারা রয়েছেন প্রধানরা আছেন, অনেক সদস্যরা রয়েছেন, সমিতির সভাপতিরা রয়েছেন। আজকে আমরা এই কদিন ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 10 বছরের সরকারের উন্নয়ন, সেই উন্নয়নের খতিয়ান নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি আমরা গেছি। আমরা মানুষকে বলেছি যে বিগত 2011 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে আসার পর থেকে বাংলায় যে উন্নয়ন হয়েছে সেই উন্নয়ন আজকে জামুরিয়ার গ্রামেগঞ্জে আমরা অনেক জায়গায় দেখতে পেয়েছি। रानीगंज के बल्लभपुर से खबर आ रही है। बल्लभपुर स्थित पेपर मिल के मुख्य द्वार के समक्ष आज बीएमएस की तरफ से प्रदर्शन किया गया और श्रमिकों के लिए कई तरह की मांगे यहां रखी गई। प्रबंधन के समक्ष और फैक्ट्री के मैनेजर, पेपर मिल के मैनेजर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए ये कहा गया कि श्रमिकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो तमाम सुविधाएं मिले। परिचय पत्र दिए जाए श्रमिकों को जो यहाँ काम कर रहे हैं पेपर मिल में श्रमिक, उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही हैं। इस बात को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया और मुख्य द्वार के समक्ष एक सभा का रूप देकर यहां प्रदर्शन किया गया और वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। ধন্যবাদ জানাই আমাদের ভারতীয় মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে যে বল্লভপুরের পেপার মিলের সমস্যা আছে সেগুলোকে তুলে ধরার জন্য অভিজিৎ ভট্টাচার্যকে উর্ফে মুন্নাদা আমাদের বিএমএস এর যে পদ অধিকারী আছে, যারা বড় বড় নেত্রী এসছেন, তাদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাই যে আমাদের পেপার মিলের আজকে বিএমএস এর গঠন, এই रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एजीएम यानी सालाना मीटिंग हुई आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभा कक्ष में और इस सभा कक्ष में हुई बैठक के दौरान पूरे साल का लेखा जोखा पेश किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष संदीप भानुटिया विशेष रूप से मौजूद थे। उनकी अगुवाई में यह मीटिंग हुई और उन्होंने बताया कि एक साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया और रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक साल के दौरान कई तरह के सामाजिक कार्य किए और कई तरह के उल्लेखनीय कार्य किए हैं और आगे भी प्लानिंग है कि चैम्बर की तरफ से उल्लेखनीय कार्य किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस बैठक में अध्यक्ष संदीप भानुटिया के अलावा उनके तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण खास तौर से मौजूद थे और सभी ने मंत्रणा की और सभी ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। पिछले साल हम लोगों ने तकरीबन 6 लाख रुपए एड किए हैं अपने संचित कोष में। अब मेंबरशिप भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है और आपके साथ यह जानकारी शेयर करके मुझे आनंद हो रहा है कि हम लोग आगामी कल चैम्बर का मोबाइल ऐप हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि भारतवर्ष में पहली बार कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा। यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और एक इफेक्टिव मोबाइल ऐप होगा जिसमें आप लोग को एक पासवर्ड दिया जाएगा। वह पासवर्ड जनरेट होकर आप किसी भी कमेटी में आप लोग डायरेक्ट उसमें एसेस कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, इशूज कर सकते हैं और उसके साथ ही वह ईमेल और व्हाट्सएप दोनों में जाएगा और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के पास भी चला जाएगा। यह एक हम लोग बहुत एक महत्वाकांक्षी है स्कीम हम लोगों ने ली है और जैसा जैसा अपग्रेडेशन मांगेगा वैसा वैसा हम लोग अपग्रेड करते रहेंगे। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में इसमें रुचि दिखाई थी, लेकिन हम लोगों ने एक को चुना और इसमें ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है, अभी खर्चा की कोई बात नहीं हुई है और हम लोगों के लिए यह गर्व की बात है। इसके साथ ही मैं बताऊं आपको कि वर्किंग जो हम लोग की रेगुलर चल रही है बिजनेस डेवलपमेंट में कुछ मुद्दे अनसुलझे, कुछ मुद्दे सुलझ। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। रानीगंज के गिरजापाड़ा में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में कई टीमों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और इस आयोजन में राजू सिंह, जो समाजसेवी राजू सिंह की मुख्य भूमिका रही, उनके साथ उनके सहयोगी भी शामिल रहे और यहाँ बैडमिंटन प्रतियोगिता के दौरान बैडमिंटन देखने वाले लोगों में भी काफी उत्साह दिखा और खिलाड़ियों में भी काफी जोश दिख रहा था। 39 सर्विस कंटिन्यू
109. Please continue. Continue. 10-40. Rohit Bisal, 10-40. Three lakh. Service continue Posatto. 3 lakh. Service check 4-1. 5-1. 5-1. 6-1. 3-6. Service continue. 3-6. Same logic. Service Rohit. Yatul. 5-8. Get start. 5-8. Service continue. 6-8. 6-8. Service continue. Service continue. 10-6. प्रेस क्लब ऑफ आसनसोल मेगा सिटी की तरफ से प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी आसनसोल के गुजरात भवन में बंगाल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 का आयोजन किया गया। सीजन 6 के इस आयोजन के मौके पर कई विशिष्ट अतिथि मौजूद थे और बंगाल के विभिन्न हिस्सों से आए विभूतियों और प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया।
बंगाल एक्सीलेंस अवार्ड से जुड़े हुए खास दृश्य आप देख सकते हैं हमारे खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर। आपने अगर लाइक नहीं किया है अब तक हमारे खास बात इंडिया के फेसबुक पेज को, तो लाइक कर ले और सीधे सीधे आप देख पाएंगे लाइक करने के बाद कि बंगाल एक्सीलेंस अवार्ड के दौरान क्या क्या हुआ था और किन लोगों को किया गया सम्मानित। आपको बता दूं कि आसनसोल के आर्ट गैलरी में इन दिनों मोम से बनाई हुई प्रतिमाओं की प्रदर्शनी चल रही है और सुशांत राय ने बनाई है ये तमाम प्रतिमाएं और इसकी प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है, जिसके सीधे सीधे रिपोर्ट की गई है खास बात इंडिया की तरफ से। और खास बात इंडिया के पेज पर आप इसका सीधा सीधा लाइव भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में, आप सीधे स्क्रीन पर देखिए ये तस्वीरें और इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्या आलम होगा, किस तरह का आकर्षण होगा। इसीलिए खास बात इंडिया के पेज पर जाएं और सीधे सीधे हमारा लाइव आप देख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप दीजिए हमें इजाजत। आपसे होगी जल्द ही मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।